Good evening and I welcome you student. Let me tell you very clearly that question should be read and should be understood before answering in the exam. If Yes, you sir. cannot understand a question, you will never be able to answer the question. Take more time in reading the question, understanding the question, then it will become easier to answer. Each every word, each and every line will have a meaning. Student, you will write only those things which are required in the exam. Hmm. If you will write what is not required in the paper, no marks will be given. Therefore, it is very important that you should read a question carefully and understand it. Then only answers will be given, students. So देखो कि on the screen I have a important question which will come in the solid state. What I have discussed in the solid state, student, what we discussed in the solid state. देखो बहुत there is a very important question. One, I told you that simple cubic BCC FCC. What is the relationship between A and R? Very important. Relationship between edge length. Edge length. What is edge length? A of the Hmm. units. And R. What is R, student? Radius of the atom. Radius Yes, sir. of the atom. Do you remember or you have forgotten? We have derived these three formulas. For simple cubic, what is the relationship between A और R? Fast 30 seconds. जल्दी बताइए क्या आंसर है इसका? Two of R, sir. Twice of R. A is equal to 2R. This should be Twice known of to R. us. Yes, sir. This should be known to us. Very important. Very important. For BCC, for So two BCC, root two R. Two root two. for BCC, I'm sorry. Four by root three. Four by root three. 4 by root Root 3 three. R. Root three. For My FCC, bad. A is Two equal root two to R. 2 root 2 R. देखो ये these formulas are important. इसके ऊपर direct questions are given in the paper numericals. ये आ चुके हैं numerical Yes, sir. और फिर आएगा. ये फार्मूले वी शुड लर्न एंड रिमेंबर क्योंकि फार्मूले आने से व्हाट विल वी डू वी विल स्ट्रेट अवे अप्लाई द फार्मूला एंड आंसर द क्वेश्चन. रिपीटेडली आ रहे हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स. And another numerical which is very favorite numerical is coming in this chapter. You already know, student, physical chemistry mein there will be numericals. 2 to 3 mark numerical will be there minimum in the solid. From this chapter what I'm talking is density. Hmm. अभी तक what we are writing the यहाँ पर देख रहे हैं calculations involving unit cell dimensions. Calculations involving unit cell dimensions. So what we are calculating in this, what we are calculating in this, students, the density calculations. How will we calculate the density of a unit cell? How will you calculate the density? What is the meaning of density? So the One amount of question is some. coming in the paper numerical. Always, every year, there is one question. Yes, sir. So we should be prepared for it. We know it. Numerical is coming. These are the Yes, sir. I'm formulas I asked am for writing. volume. And you should note down each and every formula. If there is a doubt, you should stop me. What do you mean by density of a unit cell? What is the formula of the density we learned? Mass of the unit cell Hmm. divided by volume of the unit cell. ठीक है? Yes, sir. Volume of the unit cell. But you know, mass of the unit cell will depend on mass of the atom and number of atoms. मतलब number of atoms in the unit Yes, sir. cell multiplied by mass of each atom. Because there are three types of unit cell. How many atoms per unit cell in simple cubic? Tell me. Number of atoms कितने हैं? How many? I'm sorry. Number of atoms per unit cell. How many? In simple cubic, we have calculated how many. Yes, sir. This I am saying Z. Z how much? Yes, sir. One, 2 and 4. One, sir. One. This is important. This is important. I gave you a table also, student. This should be known to us. This is important for the exam, student. Hmm. This value should be known. Z equal to 1, 2, 4 for simple cubic, for BCC, for. So if I know the number of atoms per unit cell and mass of each atom, if I divide this by volume of the unit cell,
volume of the unit cell. How do we calculate the volume of the unit cell? Tell me, if you have a unit cell like this, student, if the dimension is a, what will be the volume of this? A cube, Yes, sir. where a is the edge length. And for simple cubic, a is equal to 2r. For BCC, a is equal to 4 by root 3r. For FCC, a is equal to 2 root 2r. This Yes, formula we have to note down. Student, we will be using in these calculations. Question is coming in the paper, I'm telling you. Now you be careful. Pay attention to everything. So how will I calculate them? You are saying density is equal to number of atoms Z, mass of each atom M, divided by volume of the unit cell AQ. Volume of the unit cell AQ. Yes, And sir. if M is the molar mass, if M is the molar mass of the atom, Mm. molar mass of the atom. What is the molar mass? What do you mean by molar mass? Molar mass, what is the relationship? Student, if M is the mass, what is the relationship between molar mass and this? Sir, molar mass is the mass of substance upon number of moles. 1 for 1 mole. 1 Yes, mole. sir. Mass of 1 mole is what we say? Molar mass. Yes, So student, what will be the mass of the atom? That we can find out if we know the value of M divided by Avogadro's number. Avogadro number क्या है? Number of atoms in 1 mole. तो Na क्या है? Avogadro's number. Yes, The sir. value of which is a constant. What is the value of Avogadro's constant? So 6.023 10 power 22. 6.022 10 power 23 Yes, atoms sir. equal to m grams. And for m, it will be molar mass divided by Na, mass of one atom. The mass of one atom is Na. So many atoms weigh m grams. So one atom will weigh how much? Ma by Na. So we can express this relationship in this form: Z into m divided by a cube into Na. What is Na? Avogadro's number. ठीक है? Yes, sir. तो ये फार्मूला नोट करा आपने. इस पे क्वेश्चन आने वाला पेपर में न्यूमेरिकल. यहाँ पर हमने बताया कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल कैन बी सॉल्व फ्रॉम फार्मूला डेंसिटी मास, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट सेल डिवाइडेड m is equal to m by Na molar mass. Density, therefore density formula is equal to D is equal to Zm AQ by Na. ये फार्मूला में याद करना है, इसका यूज होना है. इसमें कोई डाउट है? No, sir. एक न्यूमेरिकल आना है एग्जाम में. आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग this density can be asked to be calculated, Z can be asked, m. Only thing, units we have to be careful. If you are using the units of density as gram per centimeter cube, students, ठीक है? ये Yes, sir. these are atoms per mole, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. और if A is given in picometer, so we should be able to convert it into 10 minus 12 meter, which is equal to 10 minus 10 centimeter. This formula you should note down. Unit conversion important in this. Otherwise numerical will become wrong, student. Note करो, everything note down. Yes, sir. तो एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पेपर में इसके ऊपर न्यूमेरिकल. तो किस टाइप का आ सकता है? देखो, कोई भी क्वेश्चन आएगा हमें, तो ये फार्मूला हमने नोट कर लिया. एक रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस, एज लेंथ एंड नियरेस्ट नेबर होता है. नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होता है. तो नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, ये हमारा जो डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर है एक सिंपल क्यूबिक के लिए, सिंपल क्यूबिक. फॉर सिंपल क्यूबिक में क्या दिखाया था आपको? जैसे इन these atoms are touching here in simple cubic. तो ये नियरेस्ट नेबर्स है. नियरेस्ट नेबर्स का कौन से होते हैं? विच आर टचिंग ईच अदर. तो दिस इज माई A. तो हियर A is equal to 2r. A is equal to 2r for simple cubic. So distance of nearest neighbor, he can ask you in the paper, student, distance of the nearest neighbor. For simple cubic, A is equal to 2r होता है, नोट किया जाए. और BCC में क्या होता है? Yes, sir. BCC में एटम, वन एटम इज इनसाइड, और डायगोनल को ज्वाइन करोगे तो वो ज्वाइन करेगा. तो इसका जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आएगा वो आएगा स्टूडेंट्स D नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस.
नियरेस्ट NEGH नेबर डिस्टेंस कहते हैं इसको पेपर के अंदर। कुछ Yes, क्वेश्चन ऐसे होते हैं, देयर विल बी 4 चॉइसेस, 4 चॉइसेस दी जाएंगी, उसमें से 1 विल बी राइट। तो हमें नंबर पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको लर्न करनी है स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले। Okay. 3/2 है। ए क्या है? एज लेंथ। Yes, sir. तो डी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स रूट ऑफ 3/2A। डी जो है मेरा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है। Okay. तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 2 आ रहा है और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d क्या है? इक्वल टू a है। ये a है। Yes, sir. इसको बोलते हैं, ये सेंटर है, सेंटर ऑफ वन एटम टू सेंटर ऑफ अदर एटम, दिस इज कॉल्ड द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। कैसे मेजर करते हैं? सेंटर ऑफ वन एटम टू सेंटर ऑफ अदर एटम। सिंपल क्यूबिक में क्या आया? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इक्वल टू एज लेंथ। Yes, sir. इक्वल टू एज लेंथ। दिस इज माय नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस फॉर विच केस? सिंपल क्यूबिक। नोट कर लिया? Yes, sir. 2 minutes. देखो कॉपी पे सब चीजें नोट करो, एवरीथिंग नोट डाउन विद कलर्ड पेन्स। इनको याद करना है और उसी को कैलकुलेशन करके वैल्यू दिखाई गई है। इसकी वैल्यू दिखाई है, डी इज इक्वल टू रूट ऑफ 3/2A। रूट ऑफ 3/2 है तो डी रूट ऑफ 3/2 होता है 0.86A और रेडियस के फॉर्म में लिखना है तो ये रेडियस है 0.433A। और फेस सेंटर्ड में क्या होता है? यू नो FCC में क्या होता है? FCC में तो एटम कैसे ज्वाइन होते हैं तुमने देखा। अगर मैं S को ज्वाइन कर दूं तो एक फेस के सेंटर में होता है एटम्स, ये ज्वाइन हुए हैं FCC। Yes, sir. ये वाले ये ज्वाइन हुए। तो यहाँ पे जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है वो ये वाला है, ये वाला, ये दिख रहे हो? तो ये वैल्यू कितनी आएगी? देखो ये जो वैल्यू आई थी, ये A था मेरा, ये A था, और अगर मैं इसको A भी मान लूं और ABC, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज की थी, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB की वैल्यू कितनी आई थी? ये कितना था? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये आया था √2A और ये इसका हाफ है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। Yes, sir. D है वो AB/2 आएगा। तो AB/2 कितना आएगा फिर? √2/2A। तो ये कितना बन गया? D। 2 को इससे कैंसिल कर दो तो A/√2 आ गया। क्या आ गया? Okay, sir. A/√2 आ गया। ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो इसका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या हुआ? D इज इक्वल टू 1/√2A फॉर द FCC। इसे क्या बोलते हैं? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। Yes, sir. अरे आपके बिल्डिंग के साथ वाला जो है वो आपका नियरेस्ट नेबर है, उसकी दीवार टच कर रही है आपसे, कर रही है ना दीवार टच, Yes, sir. और दूसरी तरफ भी कर रही है, दोनों तरफ कर रही है, तो वो नियरेस्ट okay. नेबर है हमारे। तो उनका डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे? आपके कमरे से सेंटर लिया और उनके कमरे से सेंटर लिया, उसे मैं बोलूंगा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है। Yes, इसी sir. तरह ये एटम है, दे आर पैक्ड, इनके सेंटर से इनके सेंटर को मैंने ज्वाइन किया, उस डिस्टेंस को मैं नियरेस्ट नेबर बोलता हूँ। तो ये वैल्यू नोट कर ली तुमने? Yes, sir. हो गया। 2 minutes. करना है तो नोट करो फटाफट, कोई भी चीज सभी कोई भी क्वेश्चन बनेगा पेपर में, ये बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये सब इंपॉर्टेंट है, देयर आर क्वेश्चंस इन द पेपर स्टूडेंट, ये सब पेपर के क्वेश्चंस हैं। होगा क्या कि 4 चॉइसेस विल बी गिवन और असर्टिव रीजनिंग विल बी गिवन, समझाए? तो उसके ऊपर एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चंस हैं, तो उनको यू रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो अगर इफ यू वांट रीड द पैराग्राफ प्रॉपर्ली, फिर आंसर कहां से करोगे? तो पहले उसको समझना है पैरा को, फिर आंसर करने हैं। रीजनिंग असर्टिंग में 4 चॉइसेस दे रहा है, वे रीजन सही है, असर्शन सही है क्या, और रीजन क्या असर्शन को कर रहा है, मतलब सपोर्ट या नहीं कर रहा, इस टाइप से हमें 4 चॉइसेस देके उसमें बताना है। Yes, sir. तो फिर इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये बता रहा हूं। मतलब एनर्जी है, यू हैव द एनर्जी, बोलो। तो एनर्जी चाहिए, माइंड में एनर्जी चाहिए, माइंड, योर माइंड शुड बी हैविंग एनर्जी स्टूडेंट, अलर्ट होना चाहिए, अटेंशन होनी चाहिए, माइंड को यूज होना है, कोई रट्टाबाजी नहीं है, ये बता रहा हूं, समझो बात को। क्वेश्चन शुड बी अंडरस्टूड, और 4 स्टेटमेंट हैं, फॉर द 4 स्टेटमेंट देयर इज ओनली स्लाइट डिफरेंस। तो विच इज द करेक्ट आंसर देन?
तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। बोलो, कैन यू यूज इट और नॉट, ये बताओ मेरे को। यही प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारी, अभी तक क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं भाई? तुम लोग जो दिमाग है ना अपना, यू हैव टू यूज इट स्टूडेंट, उसको फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है और उस पर सोचना Yes. है, तब जाके आंसर आएगा। मैं अभी सॉल्व करूंगा कुछ क्वेश्चन उसके ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं उसको लेके आऊंगा। इन द कमिंग लेक्चर आई विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन दैट। फिर देखते हैं उसके आंसर कैसे कैसे हमें आंसर करना है स्टूडेंट्स। Okay. फोकस करिए, कंसंट्रेट के, दिमाग को बहुत ज्यादा हमें यूज करना है, बस ऐसे नहीं कर सकता मैं कुछ भी आंसर कर दूं, ऐसा नहीं है। Yes, sir. ठीक है, जब तुम, अरे मैं, यू हैव इंटेलिजेंस, यू कैन डू इट, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई विल यू लूज मार्क्स इफ यू नो इट? देखो फिर गलती क्यों हो रही है, गलती नहीं करनी। अब क्वेश्चन सामने आ गया स्क्रीन पर स्टूडेंट, मैंने कहा कि डेंसिटी पे न्यूमेरिकल पेपर में आना है, इसको सॉल्व करो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर के अंदर, एक क्वेश्चन जैसे 3 मार्क्स का भी आने वाला है न्यूमेरिकल, सॉलिड स्टेट में न्यूमेरिकल आने हैं, ये बात याद रख लेना बार Yes, sir. बार। और डेंसिटी पे ही बहुत ज्यादा आता है, 100% एक क्वेश्चन आता है, क्या करूं, हर साल देता हूं। अब व्हाट इज द क्वेश्चन, रीड करो, पहले क्वेश्चन समझ लो, गिवन वैल्यूज नोट करो, फार्मूला रखो, यूनिट्स चेक करो और फिर सॉल्व करो। Yes, sir. तो करो फिर इसको जल्दी से। Okay. 2 minutes. एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी शो कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी। देखो मैं कोई भी, ये क्वेश्चन है मेरा स्टूडेंट्स, मैं आंसर लिखता हूं, उससे पहले मैं एक एक चीज को आई विल नोट डाउन। एफसीसी क्या लिखा है इसने, पढ़ के बताओ क्या लिखा है एफसीसी, बोलो, यू बी विद मी, अभी मेरे को सॉल्व करने दो, पहले बताओ इसमें क्या लिखा है। एक्सरे डिफ्रैक्शन शो कॉपर क्रिस्टलाइजेशन इन, पढ़ो क्या लिखा है, बताओ क्या, व्हाट इज दिस एफसीसी। तो एफसीसी का मतलब क्या होता है बताओ, हाउ मेनी एटम्स पर यूनिट सेल, हाउ मेनी Hello. Sir. एटम्स पर Sir, can you यूनिट please सेल, repeat my? बताओ कितने Excuse me, एटम sir. Can you please repeat my पर यूनिट सेल, कितने एटम होंगे? Sir, 4। please repeat once. Hello. हाँ हाँ Yes. Sir, please repeat once. My Wi-Fi shut down हाँ, for 2 minutes. मैंने ये कहा कि मैं, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, यू रीड द क्वेश्चन विद मी, और मुझे Okay. बताते Yes, जाओ sir. एक एक वर्ड क्या क्या लिखना है मुझे पहले। आई एम नॉट सॉल्विंग द Yes, sir. क्वेश्चन, फर्स्ट यू टेल मी। हाँ. एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी शो कॉपर क्रिस्टलाइजेशन, किसमें क्या लिखा है ये? FCC. Sir, FCC. एफसीसी का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफसीसी, बताओ पहले वो लिखो। एफसीसी मींस Face and नंबर ऑफ figure. एटम पर यूनिट सेल, कितने हो गए? 4। Sir, 1. 4, sorry, 4. हाँ, 4 बता उसमें था. भाई 3 ही बताए Sir. आपको, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी एंड हाँ. एफसीसी। सिंपल Yes, क्यूबिक sir. में Yes. हाउ 4, मेनी, 4, 4. 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4, ये तो 1, हमें पता याद हो 2 गया। and इसमें 4. चलो Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. विद Yes, sir. सेल एज लेंथ, सेल एज लेंथ क्या होती है, नोट करो यहाँ पर, एग्जाम के लिए बता रहा हूँ कैसे करूंगा सॉल्व। सेल एज लेंथ कितनी है, ए की हाउ मच इज द वैल्यू, 3.608 10 - 8 सेंटीमीटर, ये तो गिवन है मेरे को, ठीक है। इन सेपरेट एक्सपेरिमेंट कॉपर Yes, इज sir. डिटरमिन्ड टू हैव डेंसिटी, कितनी डेंसिटी दे रखी है मुझे कॉपर की, 8.92 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। Cube. दिस इज ऑल गिवन टू मी। Yes, sir. यूनिट्स चेक करो, सेम है इसके और इसके, बोलो यूनिट्स तो ठीक है, नो इशू, कोई मीटर में है, Sir, your voice पिकोमीटर is में है, breaking. नहीं है, सेम है यूनिट्स। No, sir. तो निकालना क्या है, एटॉमिक मास m, किसका, ये जो कॉपर का है इसका m निकालना है। तो फार्मूला बताओ डेंसिटी का, जल्दी से बताओ क्या फार्मूला लिखा था तुमने, याद हो गया फार्मूला, z m और क्या था, a क्यूब Your voice is इंटू breaking, sir. na, ये फार्मूला लिखा था मैंने, भाई, sir, na की ऐसे वैल्यू लिखा था क्या आपने. है, इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल, ठीक है। Yes, रखो वैल्यू sir. इसके अंदर, रखो, काटा पीटी करो, वैल्यू रखो, Z4, Good, sir. Okay. m ठीक है, निकालना sir. है, और क्या है, a क्यूब कितना है, 3.608 10 - Then the -8. सेंटीमीटर का ये क्यूब है, और n की वैल्यू ये है। पहले ये फार्मूला बन गया, तो मुझे निकालना m है, तो m डेंसिटी की वैल्यू गिवन है,
Yes, ये बना। एम की वैल्यू क्या आई फिर? डी इंटू सर m की वैल्यू है डी इंटू 8.92 into 4 अरे डी 92.4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हाँ डी इंटू थ्री yes sir 3.608 sir d into 6.02 इंटू सेंटीमीटर द क्यूब इंटू yes एन sir ए कितनी है 6.022 divided by 10 पावर 23, ठीक है, yes और divided ये by एटम्स पर मोल है। और नीचे क्या आ गया फिर? जेड 4 की वैल्यू 4 sir 4, ठीक है, yes sir तो 4 एटम्स हैं। hmm तो अब डी की वैल्यू रखो, कितनी है? हाँ 8.92 ग्राम पर 8.92 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और जो भी करते हैं काटो yes sir हाँ और yes निकालो sir आंसर। एम मोलर मास निकालो फिर इसका, जो काटते हैं उसको काटो, और क्या करना है? सेंटीमीटर क्यूब है, ये डी की वैल्यू हमारे को गिवन है, ग्राम और सेंटीमीटर इनवर्स है। ये कट जाएंगे तो ग्राम पर मोल बचेगा। कितना वेल आंसर आ रहा है इसका? yes sir एक sir सर इसका आंसर मेरा 63.1 ग्राम पर मोल, yes तो sir मोलर मास आ गया, ठीक है। ये आंसर मेरा आ गया। तो आई हैव टू राइट ऑल द स्टेप्स इन द पेपर। एग्जाम में सारे स्टेप लिखने हैं। कोई डाउट है? किसी भी चीज में डाउट दिख रहा है? यूनिट रखता हूं क्योंकि यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट। मेक यूनिट्स के मार्क्स हैं स्टूडेंट, एंड समटाइम्स कन्वर्शन में भी रिक्वायर्ड, जो मैंने बताई आपको, क्योंकि एक 1 पिकोमीटर में बहुत बार देता है वो ए की वैल्यू। तो if I will have picometer, I will convert it into 10 minus 12 meter, which is 10 minus 10 सेंटीमीटर। तो कन्वर्शन भी हमें करनी पड़ती है, इसको yes sir हमें यूनिट्स को हमें याद करना है स्टूडेंट, इनको याद करो। हो गया ये क्वेश्चन? yes sir चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। सिल्वर फॉर्म सीसीपी and X-ray studies of crystal show that as length of its unit cell is 408.6 picometer, calculate the density of silver। जल्दी से करिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, yes ऐसे ही क्वेश्चन एक आने वाला है आपको, तो यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट। बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट? भी करता हूँ करो इसको। सर इसमें do I convert picometer into millimeter और centimeter? यही तो मैंने बताया तुम्हें। अभी इतने पीछे अच्छा क्या दिखाया मैं तुम्हें, इसलिए शो किया कि यू हैव टू यूज द राइट यूनिट। ये दिया yes होगा sir सिल्वर। हाँ सीसीपी सर का आंसर मतलब क्या समझ होता गया है? अभी करता हूँ सीसीपी का 4 सर मतलब क्या 4 होता FC है? हाँ एफसीसी वाला ही होता है। जेड FCC की वैल्यू FCC कितनी है? 4। FCC yes सर आज लेंथ कितनी दे रखी है? हमको 4.8 8.6 सेंटीमीटर पिकोमीटर अब इसको, क्योंकि डेंसिटी एटॉमिक मास दिया हुआ, डेंसिटी किस में निकालने जा रहे हो? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। yes सर तो फिर मुझे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना आएगा? 408.6 10 minus 10 yes sir सेंटीमीटर। into 10 minus 8 तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4.086 इंटू 10 माइनस 8 सेंटीमीटर। सॉल्व करना है इजीली, जितना आसान से हो सकता है। yes sir और इसका मोलर मास उसने दिया है 107
6.9 यू का मतलब ग्राम पर मोल लिख सकते हो। एक मोल में 107 7.98 ग्राम होते हैं सिल्वर के। तो डेंसिटी का फार्मूला निकालो फिर क्या है, Z इंटू एम ए क्यूब डिवाइडेड बाई एन ए की वैल्यू कितनी है 6.022 10^23 एटम्स पर मोल। बोलो, रखो सारी Yes, sir. वैल्यूज। जेड की वैल्यू 4 एटम्स हैं, ठीक है, 4 एटम्स। Yes, sir. 4 एम into निकालना है, नहीं एम तो दिया हुआ है, ठीक है, कितनी है एम की वैल्यू, 7.9. Deal. रखो एम की वैल्यू रखो, कितना है 107.9 ग्राम पर मोल। ए Yes, क्यूब sir. की वैल्यू कितनी हुई 4.086 10 - 8 द क्यूब यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और एन ए क्या है एवोगाड्रो Yes, sir. नंबर 6.022 Okay. 10^23 एटम पर मोल, ठीक है। ये मोल से मोल काटो, Yes, एटम sir. से एटम काटो, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बच जाएगा जो यूनिट होते हैं डेंसिटी के। अब Yes, इसको sir. सॉल्व करना, समझ में आई कि सोल्यूशन कैसे निकालता हूं मैं। Yes, sir. अब अगर थोड़ी बहुत है, आई विल ट्राई सम अप्रोक्सीमेशन इफ पॉसिबल। मैं इसको 4.1 ले लूं और 10 माइनस कितना हो गया 24 और ये 10^23 है। देखो मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐसे लिखा 1 4 लिखा, इसको मैंने 108 कर दिया। चलो अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ थोड़ी सी। ये मैंने Yes, क्या sir. किया 4.1 कर दिया इंटू 3, ठीक है। और ये कितना हो गया 10 - 24 और ये 6 कर दिया और ये 10^23 है। ये कितना बचा फिर, Yes, sir. ये -10 -1 बचा तो ऊपर चले जाएगा। फिर कितना आ गया 4108 ऊपर 10 आ गया। ये और ये मैंने खत्म कर दिए स्टूडेंट। तो ये क्या बचा, चलो इसको मैंने 4 × 4 तक क्यूब कर दिया, इसको 6 कर दिया, तो कितनी वैल्यू आई, कुछ आसान हो गया। तो ये कैलकुलेट कर, Yes, sir. हो गया. यूनिट क्या है ग्राम पर सेंटीमीटर, जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम्म. नोट करो। कितनी आ रही है अराउंड 10 पॉइंट समथिंग आएगी। Yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चन यू कैन डू इन द न्यूमेरिकल, बताओ कोई मुश्किल है, No, sir. कोई भी दे कैन आस्क एनीथिंग बिकॉज द फार्मूला इज लाइक दिस। जेड निकालेंगे और ए, अगर ए नहीं दिया, ए नहीं दिया तो आर देगा, वो रेडियस देगा, एटम रेडियस ऑफ द एटम देगा। तो ए Yes, और sir. आर में रिलेशनशिप आपको पता ही है, सिंपल। व्हाट इज द सिंपल क्यूबिक बीसीसी एफसीसी, तीन तीन फार्मूले बता चुका हूं, ठीक है। ये Yes, sir. नोट कर लिया तुमने सारा। नहीं sir. Don't almost doing. 2 minutes, sir. Done, sir. ओके, देखो इसी टाइप के क्वेश्चन है, जैसे ये है an element has a body centered BCC with a cell edge length 228 picometer. The density of the element is how many Yes, sir. atoms are present in 208 gram of this. How many atoms are present? इसको कैसे करोगे, जल्दी से, आपके पास 2 मिनट्स का टाइम है, इसको सोचिए। एलिमेंट हैज बीसीसी, बीसीसी क्या होता है, जेड की मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है।
Yes, sir. 2 एटम्स होते हैं इसके अंदर एक बीसीसी में। और ये कह रहा है कि डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी कितनी दी है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। और Yes, सेल sir. एज दे रखी है, सेल एज मतलब ये सेल है, यूनिट सेल। और इसका ए मुझे गिवन है कितना 288 पिकोमीटर, ये वाला ए Yes, गिवन sir. है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया यूनिट सेल का, ए क्यूब। अब इसका यूनिट देखो, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो क्या यूज करूंगा मुझे, क्या आया 288 इंटू 10 - 10 सेंटीमीटर। बोलो सही है, Yes, sir. यूनिट कन्वर्शन मैंने तुम्हें पहले ही बताया। तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या आई, इसको मैं और भी इजी कर दूं, 2.88 इंटू 10 - 8 सेंटीमीटर एज लेंथ। तो इसका वॉल्यूम कितना आया, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना आया 2.88 इंटू 10 - 8 ए द क्यूब Yes, sir. सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम आया किसका, एक यूनिट सेल का। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। तो इसका वॉल्यूम कितना है, जो मुझे कितने ग्राम दिया उसने, 208 ग्राम एलिमेंट दिया। तो इसके अंदर इसका वॉल्यूम कितना होगा 208 ग्राम का। देखो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट कितना है इसके अंदर, वॉल्यूम कितना बनेगा 208 ग्राम का। मास कितना दिया हुआ है 208 ग्राम दिया। Yes, sir. तो वॉल्यूम कितना होगा, डेंसिटी वॉल्यूम क्या होगा, मास बाई डेंसिटी। ठीक है, Yes, sir. मुझे वॉल्यूम निकालना है, आई हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा, मास बाई डेंसिटी। मास कितना दिया मुझे 208 ग्राम, डेंसिटी कितनी दी है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये कट गया, तो 208 बाई 7.2 कितना आएगा 28.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम 28.8 सेंटीमीटर क्यूब है स्टूडेंट हमारे पास। ठीक है, अब हमें हमारे पास कितना आया, ये मल्टीप्लाई करके जो हमने किया, ये वाला इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल है। तो ये मेरा वॉल्यूम है, Yes, sir. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। तो इसमें कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आएंगे 28.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ 1 Yes, sir. यूनिट सेल। 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। हाउ मच इज दैट, Yes, sir. सेंटीमीटर क्यूब Yes, sir. डिवाइडेड बाय, Yes, sir. ये कितना आएगा Volume. 2.88 10 - 8, ठीक है, पावर Yes, 3 sir. सेंटीमीटर क्यूब। चलो ये कटे, काटा पीटी करो, ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब कितना आएगा नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएंगे इससे, Yes, sir. कितने आएंगे, तो अराउंड आ जाएंगे 12 पॉइंट समथिंग इंटू इसमें 8 तो इसमें 10 सर, इसमें 10 सर पावर 10 सर 10 23 यूनिट सेल्स के बराबर आ हम जाएगा। सर 12 कैसे सर सर काटो, मेरा 10 आ ये रहा है, 12 3 नहीं आ बार रहा है, इसको काटेंगे तभी पता लगेगा ना। ये 28.8 है, और ये वैल्यूज को काट पीट के करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। तो मेरा 10 आ रहा है एक्चुअली, 12 नहीं आ रहा। हाँ नहीं, ये तो मैं 10 आ रहा है इसके अंदर। हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। ये सारा इसको करके जो भी करोगे कर लेना, जैसे जितना भी आ रहा है नंबर ऑफ यूनिट हाँ। सेल्स आ जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट Yes, सेल्स sir. आ जाएंगे। अब एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1 यूनिट सेल 2। तो फिर नंबर ऑफ एटम्स Yeah. कितने हुए, इसने पूछा क्या था हमसे, हाउ मेनी एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए, फिर नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए इन 208 ग्राम्स, जो हमें 208 ग्राम दिया था। इसने कितना दिया था 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट में कितने एटम्स हुए। ये बीसीसी है,
तो एक यूनिट सेल में 2 Yes. एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो Yes, sir. ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स जो भी आ रहा है, देखो अप्रोक्सीमेट हमने किया तो अराउंड 24 इंटू 10 पावर 23 एटम्स होंगे उसके अंदर। तो Yes, sir. आप देखिए कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, इफ आई टेक 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट जिसकी डेंसिटी 7.2 है, तो उसके अंदर कितने एटम्स आ रहे हैं, इतने सारे, बहुत एटम्स हैं, Hmm. मिलियंस ऑफ एटम्स आर देयर। तो No, ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी लग रही है? sir. ये पेपर में आ चुका है लास्ट टू लास्ट ईयर, अब सुन लो बात, उसको सॉल्व किया गया। Yes, sir. It is not necessary कि he will give full, he will ask a part of that question, change the values, values को Yes, sir. चेंज कर देंगे। समझ में आया? Yes, sir. आगे समझ में। अब ये क्वेश्चन हो गया, अब इसके आगे चलते हैं। इस तरह से न्यूमेरिकल हम बाद में और करेंगे, बाद में और न्यूमेरिकल कर लेंगे। अब और देखते हैं, विल डू सर्टेन थिंग्स लेटर ऑन स्टूडेंट। ये सब क्वेश्चंस हैं, हम करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे। अब हम आ रहे हैं, डिफेक्ट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन लैटिसेस, व्हाट यू मीन बाय डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल लैटिस में क्या होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं। डिफेक्ट्स क्या होते हैं, इंपरफेक्शंस होती हैं। देखो व्हेनेवर क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड स्टूडेंट, देयर आर सम डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल्स। Yes, क्या sir. होते हैं, imperfections। A crystal, what is a crystal? There is a regular repeating arrangement of atoms or particles, लेकिन some particles may be missing, some particle may be dislocated, ठीक है। तो वो क्या Yes, होते sir. हैं, उनमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो हम दो टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, एक होता है, हम ये व्हाट वी आर डिस्कसिंग स्टूडेंट, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। तो एक पॉइंट डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, और दूसरे लाइन डिफेक्ट्स हैं। Yes, sir. तो पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं कि जो अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स होता है, वो देयर इज सम प्रॉब्लम इन द अरेंजमेंट, उसमें इरेगुलरिटी हो जाती है, देयर इज इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। Yes, sir. और लाइन में क्या होता है कि द लाइंस में भी मिसिंग कंप्लीटली, ठीक है। तो Yes, sir. इसे क्रिस्टल डिफेक्ट्स बोलते हैं। क्रिस्टल डिफेक्ट्स कुछ भी नहीं है, दिस इज ए इरेगुलरिटी इन द क्रिस्टल्स, it is a irregularity in the crystal. So, And yes, sir. here in our course we will be discussing only point defects। कौन से डिस्कस करेंगे, पॉइंट डिफेक्ट्स। What defects? पॉइंट डिफेक्ट्स का मतलब है जो पार्टिकल्स हैं, दे कुड बी मिसिंग और दे कुड बी चेंजिंग देयर पोजीशन, दे कुड बी डिसलोकेटेड, क्योंकि Yes, sir. closed packing took place, there were some interstitial spaces, there were some empty spaces, so smaller particles can go inside those voids or empty spaces। देखा था आपने voids? Yes, sir. तो इस तरह से उनके अंदर कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। हम वी विल बी डिस्कसिंग पॉइंट डिफेक्ट्स व्हिच आर कॉल्ड, दे कुड बी वैकेंसीज, देयर कुड बी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, सब्स्टिट्यूशन डिफेक्ट्स, लाइन डिफेक्ट्स जो होते हैं वो हम नहीं स्टडी कर रहे, उसमें कंप्लीट लाइन विल बी एब्सेंट स्टूडेंट। सरफेस डिफेक्ट्स आर आल्सो देयर, सरफेस ग्रेन बाउंड्रीज। सब्स्टिट्यूशन डिफेक्ट मीन वन एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर। इंटरस्टिशियल मीन एक्स्ट्रा एटम इज इंसर्टेड इनटू द लैटिस स्ट्रक्चर एट द interstitial positions, Yes, sir. vacant space। So all these possibilities are there. But I am saying it is impossible to obtain any substance in 100% pure form. Impurities are always present. Even if it were 100% pure, forming a perfect crystal will require cooling the liquid placed infinitely slowly to allow the atoms to find their proper positions. But it is not possible, so there will always be some defects. So metals can have point defects. Only single particle or a lattice point or very small set of points is dislocated, student. A line defect is restricted to row of lattice points and a plane defect to entire lattice. Vacancy occurs when atom is missing from normal crystalline array। ठीक है, Yes, तो sir. अपने क्रिस्टलाइन अरे में कोई एटम नहीं आया, वेकेंट हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी। Okay. तो इस तरह से ये सारे डिफेक्ट्स हम पढ़ने जा रहे हैं। तो impurities can be classified as interstitial or substitution। interstitial impurity is really smaller atom। जो smaller atoms होते हैं स्टूडेंट, what they do, they can occupy the vacant sites। vacant sites कौन सी हैं, vacant sites कौन सी हैं, mostly you have octahedral or tetrahedral type of holes, student। You have seen they can go inside, the tetrahedral void is smaller, octahedral is void small, bigger than that। so depending on the size they can occupy the students, the as per the size of the atom they can occupy
the interstitial sites in terms of the tetrahedral or octahedral voids. फॉर एग्जाम्पल जो स्टील Yes. होता है, जैसे माइल्ड कार्बन है, ये मेलिबल और डक्टाइल है. स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील में वी हैव एडेड सर्टेन अदर इम्प्योरिटीज लाइक क्रोमियम, मैंगनीज, निकल, तो ये क्रोजन रेजिस्टेंस बन जाता है. तो वी हैव एडेड सर्टेन substances from outside student which are acting as a impurity in the crystals of iron, but they will change the properties of this. तो हम many times हम खुद ही करते Yes, sir. हैं, हम खुद ही रिप्लेस कर देते हैं. That iron atoms are replaced by which atoms? Chromium, manganese in certain rays. They become corrosion resistance. उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं. तो इस तरह से जो सिमिलर टाइप का रेडियाई होते हैं, दे कैन बी एक्सचेंज इजीली स्टूडेंट्स. ठीक है, ये सब एक वैसे मैंने बताया आपको कि इम्प्योरिटीज किस तरह से होती है. Interstitial impurities are smaller atoms than the host atoms, whereas substitutional impurities are similar size to the host atom. Pure gold is too soft to make durable jewelry. आपको पता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं. क्या मिक्स करते हैं? कॉपर और सिल्वर. प्योर गोल्ड, यू कांट मेक द ज्वेलरी ऑफ प्योर गोल्ड स्टूडेंट, इट इज हाईली मेलेबल. Yes, sir. उसको हार्ड करने के लिए क्या करते हो? यू मिक्स स्टूडेंट. 100% गोल्ड नहीं है, 24 कैरेट गोल्ड नहीं है स्टूडेंट, तो 75% है 18 कैरेट गोल्ड, और 58% है 14 कैरेट गोल्ड. उसमें रिमेनिंग क्या है? कॉपर और सिल्वर. Okay. तो जितने भी कलर्ड जेम्स होते हैं, दे हैव सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल ऑक्साइड्स. तो ये हमने वैसे बताया आपको. जो रूबी भी एक है, उसके अंदर भी इम्प्योरिटीज हैं स्टूडेंट. जो क्रिस्टल्स बनते हैं उनमें इम्प्योरिटीज होती हैं कुछ. देयर आर अदर टाइप ऑफ आयंस व्हिच आर प्रेजेंट इन देम. ये एग्जांपल दी आपको, कुछ नहीं किया. Yes, sir. तो डिफेक्ट्स हैं क्रिस्टल में. किस टाइप के डिफेक्ट्स हम स्टडी करने जा रहे हैं? इम्प्योरिटी डिफेक्ट और स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड नॉन. दो टाइप के डिफेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट हमारे कोर्स में है. स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं स्टूडेंट? व्हाट आर स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स? In stoichiometric defects, student, these are the point defects that do not disturb the stoichiometry of the solid. They do not disturb the stoichiometry. ठीक है, they do not disturb the stoichiometry of the solid. Yes, sir. Solid की stoichiometry disturb नहीं करते वो. ठीक है, ठीक है. इन्हें दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक, और इनको दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट स्टूडेंट्स. Yes, sir. थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी कहते हैं. तो स्टेक्योमेट्री डिस्टर्ब नहीं होती, इनमें स्टेक्योमेट्री सेम रहती है. कंपाउंड जो होते हैं उनका फार्मूला चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा स्टूडेंट. अगर मैंने लिखा AgCl ZnS, तो इनकी स्टेक्योमेट्री सेम है, कोई भी चेंज नहीं हुई. देयर इज नो चेंज इन द स्टेक्योमेट्री ऑफ दीज कंपाउंड्स. ZnS, AgCl, AgBr, KCl. इनमें इफ देयर आर एनी डिफेक्ट्स, तो वी आर सेइंग दीज डू नॉट डिस्टर्ब द स्टेक्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड. Yes, sir. इन्हें बोलते हैं स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स. दूसरे कौन से हैं यहाँ पे? नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स. तो दे विल डिस्टर्ब द स्टेक्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड. इसमें क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है. क्या डिस्टर्ब हो जाती है? स्टेक्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड. Yes, sir. स्टेक्योमेट्री मतलब मेटल एक्सेस हो जाते हैं, या है ना, मेटल एक्सेस हो जाते हैं, या मेटल डेफिशिएंसी हो जाती है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कुड बी ए मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी. ऐसे चीजें हो सकती है. मेटल डेफिशिएंसी भी हो सकती है, मेटल एक्सेस भी हो सकते हैं इन केसेस में. Okay. तो जो फार्मूले होते हैं, फिर जैसे हमारे पास एक है आयरन, उसको यू मे हैव सीन सच Fe 0.93O लिखा जाता है. तो इसका मतलब यहाँ पर ये FeO होना चाहिए था, बट इंस्टेड ऑफ FeO वी आर राइटिंग Fe 0.93. तो स्टेक्योमेट्री डिस्टर्ब हो गई है. दिस इज एक्चुअल कंपाउंड इज दिस पोजिंग, बट द स्टेक्योमेट्री इज Fe 0.93O. दैट मीन्स देयर इज सम डिस्टर्बेंस इन द स्टेक्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड. तो ये क्या हुआ कि मेटल डेफिशिएंट हो गया है. मेटल शुड बी 1, इंस्टेड ऑफ 1 इट इज 0.93. 0.93 इज लेस देन 1. तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो गया. यहाँ पे क्या हुआ? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो गया. और कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जब हम बताएंगे, जैसे Zn1 + XO. अब ये ZnO होना चाहिए था, बट Zn1 + X लिखा है मैंने. तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इसमें जो एक्सेस हो गया है, क्या एक्सेस हो गया? मेटल एक्सेस हो गया.
मेटल कौन सा, Zn एक्सेस हो गया, मैंने लिखा ना Zn 1 + x लिखा है, x की वैल्यू वेरी करेगी। Yes, sir. तो देख रहे हो ये सब नॉन स्टेक्योमेट्री वाले हैं। ये वाले कौन से हैं स्टूडेंट्स, नॉन स्टेक्योमेट्री। यहाँ पे स्टेक्योमेट्री हैज बीन डिस्टर्ब्ड स्टूडेंट, स्टेक्योमेट्री हैज बीन डिस्टर्ब्ड। नोट कर लिया तुमने, Almost, sir. कर लो। और स्टेक्योमेट्री में कौन कौन से हो सकते हैं हम सारे डिस्कस करेंगे। स्टेक्योमेट्री में कौन कौन से आएंगे, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल, 4 टाइप के हैं स्टेक्योमेट्री डिफेक्ट। कितने टाइप के, 4 टाइप्स के। वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट्स, ये वाले कोवलेंट सॉलिड्स में मिलते हैं, Yes, sir. नॉन नॉन आयनिक सॉलिड्स में मिलते हैं, नॉन आयनिक सॉलिड्स में। और ये फ्रैंकल और ये किस में मिलते हैं, आयनिक सॉलिड्स में। दे आर फाउंड इन आयनिक सॉलिड स्टूडेंट। नोट कर लो सब पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन बनेगा पेपर में। स्ट्रेट क्वेश्चन है, व्हाट इज द Yes, sir. डिफरेंस बिटवीन स्टेक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स इन द सॉलिड्स। नोट करो सारी चीजें नोट करो स्टूडेंट। फिर इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स होते हैं। इम्प्योरिटीज का मतलब है कि वी आर एडिंग सम इम्प्योरिटी इन द मोल्टन क्रिस्टल्स। जैसे NaCl है, ठीक है, NaCl के अंदर हमने क्या किया, ऐड कर दिया स्मॉल अमाउंट प्लस SrCl2 ऐड कर दिया। ये एक इम्प्योरिटी ऐड कर दी मैंने, किसमें, NaCl में। तो ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट बन गया। ये क्या बन गया, Yes, sir. ये वाला इम्प्योरिटी डिफेक्ट बन गया। इसमें मैंने NaCl में क्या किया, मेल्ट करके मोल्टन NaCl में आई हैव एडेड स्ट्रोंशियम क्लोराइड। तो यहां पर इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो गया। Yes, sir. तो अभी तक ये जो सामने स्क्रीन पे यू कैन सी स्टूडेंट, स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं, उनमें स्टेक्योमेट्री मेंटेन रहती है, ठीक है, दे डू नॉट डिस्टर्ब द स्टेक्योमेट्री ऑफ द सॉलिड। Yes, sir. नॉन स्टेक्योमेट्री में क्या हुआ कि इनकी स्टेक्योमेट्री डिस्टर्ब हो गई। देखा ये Fe.93 वो लिखा, यहाँ पे मेटल डेफिशिएंसी हो गई, ये मेटल डेफिशिएंसी वाला था ये वाला, और मेटल एक्सेस हो गया ये ZnO वाला। यहाँ पे देखो मेटल एक्सेस हो गया, तो स्टेक्योमेट्री डिस्टर्ब हो गई। और इम्प्योरिटी में क्या किया मैंने, NaCl को मेल्ट किया, उसमें मैंने ऐड कर दिया स्टूडेंट स्ट्रोंशियम क्लोराइड। व्हेन आई ऐड Yes, sir. स्ट्रोंशियम क्लोराइड इन NaCl, तो एक तरीके से क्रिस्टल्स के अंदर डिफेक्ट क्रिएट हो गया, तो दैट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये सारे डिफेक्ट्स हम स्टडी करेंगे, ये सारे डिफेक्ट्स हम स्टडी करेंगे, इन सबको नोट किया जाए। Okay. What I try to say student, when the crystals are formed, they are not perfect, वो perfect नहीं होते। So there will be some defects, some irregularities in the structure of the crystals. Some of these particles may be dislocated, some of these particles may be missing, or there may be some presence of impurities in them, or there may be some what we are saying in non-stoichiometric defect, there may be some metal deficiency, or there may be metal excess in a particular crystal. So whenever we will form crystal, there will be some defects in the solid which are called imperfections in the solid. क्या मैं बता रहा हूँ? Imperfections in the solids. Sorry. Yes, sir. In certain cases, I myself said that we ourselves add impurities, students, from outside. जैसे stainless steel, I showed you. Iron is corroded, iron gets rusted. We are adding some impurities from outside, student, and that prevents student and changes the properties of the iron, stainless steel. You have seen gold. Yes, sir. In 100% gold is 24 karat. It cannot be used for making jewelry, student. It's highly malleable and ductile. So we have to increase its hardness by adding what we add, copper or silver. So what you have 18 karat gold, we just show you. So what we are adding, impurities in the lattice crystal lattice of the gold. तो ये सारे क्या हैं, सॉलिड डिफेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूं। ये समझ में आया आपको? Yes. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया। अच्छा, ये सारे आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑल दिस, क्योंकि फिर ये पूरा टॉपिक है। अब जो मैंने डिफेक्ट्स बताए हैं आपको, दिस आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट। ये कौन कौन से स्टेक्योमेट्री एंड नॉन स्टेक्योमेट्री वी आर गोइंग टू डिस्कस, बिकॉज इट विल टेक 1 hour. So I will discuss this in the next lecture. Meanwhile, I am saying to you that you will solve the question papers and students send it to me after solving the question papers. ठीक है? तो you will be solving large number of question. इनकी पूरी प्रैक्टिस करनी है।
तो we cannot take you student easy time because time is less and we have to do question answer sessions. So organic chemistry in में I have uploaded many question answer sessions. Please go through them. उनको सुन लीजिए and Yes, sir. make a notes of them. Notes बनाइए उनके. So you have to see that each and every word is important. Each and every line is important. रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करिए. वी हैव अपलोडेड रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ नेम रिएक्शन. उनको स्टडी करिए. ठीक है. तो ये Yes, कर sir. लोगे तुम सब. Yes, sir. नेक्स्ट क्लास कब है? Sir, your choice. You tell me. चलो फिर करता हूँ कल और देखता हूँ टाइम. मॉर्निंग अवेलेबल है क्या? So tomorrow morning. Yes, available. तो फिर मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा. दिस आई विल ट्राई टू फिनिश Okay. दिस चैप्टर सो दैट वी कैन स्टार्ट द रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स. ओके देन, गुड नाइट. फिर मैं मिलता हूँ कल. ऑलराइट, गुड नाइट. Good night, sir.